welcome to the platform of Kanun Shala. We have arranged a special class for you so that you can understand the basis of essay writing, which is very important for your languages section in your judicial examination. So, first of all, I would just brief up about our organization, about the platform that we provide evaluations, both law and languages, so that you can prepare, with more zest for your examinations. Apart from that, we have also conducted special sessions, like this is one of them, and isse pehle we have conducted a 7-day mains answer writing session. So we keep on doing sessions which are, very important, one go. And we are also planning to do legal sessions in the coming times. So if you want any sort of evaluations, anything like any guidance, any answer checking, any guidance on how to attempt your answers, different type of questions have different structure on how to attempt. So you can refer to you can trust us, and you can contact us either on Telegram or on WhatsApp. WhatsApp number is this, and Telegram ID is Kanun_Shala. So you can take a screenshot or you can note this down. The WhatsApp number is 95181944120, and the Telegram ID is KANOON_Shala, which is SHAALA. And I would just like give a brief overview of this session. This will be around 2.5 hour session, even more than that, because I will actually write an essay, not the whole essay obviously, but the main pointers on today's topic, whatever I've decided. Apart from that, whatever your doubts are, you are free to ask it, but I would kindly request you to not unmute your mics directly. You can raise your hands or post it in the chat box. I will refer to your doubts as and when I receive them. I wouldn't wait for the end to receive them. Secondly, I would be giving you a brief overview on how to actually attempt your answer. See, every essay is unique in itself. There cannot be a fixed pattern on how you attempt it. So, but there are certain sections in an essay which is very mandatory and it has to be in your essay. So we'll see the structure, we'll see the sources. I will give you some important topics, some current topics on, which are very important and which are likely to be asked in an examination. So without wasting any time, I'm going to start. I hope आप लोगों ने नंबर और या आईडी रेफर कर लिख ली होगी या आपके पास नोट डाउन होगी and I also think that most of you are in the Kanun Shala group, so you will get all the updates there. So I would first of all start with the introduction to today's essay writing session. I hope my screen is visible. Please give me a thumbs up if I am audible properly and the screen is visible. Okay, thank you for the confirmation. So the scheme of the session, first of all, I will tell you the basics of answer writing of essays. Then I will tell you different sources on how you can frame your answers. Then I will tell you the structure, introduction, body, and conclusion. Then I will give you some main topics. You should have a glossary with you when you are preparing and when you're attempting your examinations, even if they are mocks or anything. You should have a list of essays. Not, I wouldn't really tell you कि आप पूरा essay लिखो, but at least you should have one topic and then you should have pointers on. क्योंकि क्या होता है कि when you have pointers, you remember them in your examination. And then when you have pointers, you can frame your essays very easily. When you have the static knowledge with you, when you have that, that compilation with you, it will really help you, because what happens is, okay, sure. It's okay. Okay. So, whenever you have a compilation of your essays, it becomes very easy for you, because what happens is when you have your mains examination, students tend to
focus more on the legal part than on the languages part. But one must remember that 80% of the state judiciary exams have essays as a part of their mains examination. And remember this, that your languages, in today's time, languages, again, I'm focusing, languages are your make or break. Remember this. बिकॉज लॉ आपने पढ़ी है, लॉ आपने अपने प्री के लिए भी पढ़ी है और आपने अपने मेंस के लिए भी बहुत अच्छी तरह पढ़ी है। प्री में भी लॉ पढ़ा है, मेंस में भी लॉ पढ़ा है। पर क्या होता है कि लैंग्वेजेस के लिए हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमें तो लैंग्वेजेस आती है, हमारी तो हमारी जो कंट्रोल है लैंग्वेज पे वो बहुत अच्छा है, बिकॉज वी थिंक दैट वी स्टडीड लैंग्वेजेस सिंस ऑल आवर लाइफ। हम लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा है, फिर कॉलेज में भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में पढ़ा है, तो हम लोग को ये लगता है कि हमें तो लैंग्वेजेस आती है। पर ऐसा नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जितना आप लोग लॉ को इम्पोर्टेंस दे रहे हो उतना आपको अपनी लैंग्वेजेस को भी इम्पोर्टेंस देनी है, बिकॉज इट विल फेच यू इक्वल मार्क्स। And yes, again I'm repeating this, it is a make or break for your examination. आप पिछले कुछ भी एग्जामिनेशन के, रीसेंट एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स निकाल के देख लो। अभी रिसेंटली हरियाणा का आया, आप देख लेना वहाँ पे मार्क्स, पूरी डिटेल्ड आंसर शीट आई है, आपको दिखेगा लैंग्वेजेस में जिन्होंने अच्छा करा है वो सब टॉप स्कोरर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड essay इज अ मेन पार्ट ऑफ योर लैंग्वेज एग्जाम। कोई भी स्टेट को टारगेट कर रहे हो आप, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है ना, मतलब ऑब्वियसली गुजरात में गुजराती आती है, पंजाब में पंजाबी आती है, बट आपकी इंग्लिश तो आती है, कईयों में प्री में भी आती है, कईयों में मेंस में भी आती है, कईयों में सिर्फ मेंस में आती है, प्री में नहीं आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऐसे का टॉपिक। सो 80% ऑफ द जुडिशरी एग्जाम हैव दिस एज मेन, एज अ पार्ट ऑफ द मेन एग्जामिनेशन, एंड इट इज अ लैंग्वेज पेपर, it is not a legal paper. Now what mistakes we tend to do is, हम लोगों को एक टॉपिक आया, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट पे एक टॉपिक आया, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। We get this topic. Now what we do is that we study it with the legal knowledge. वो हमारी लीगल नॉलेज देखने के लिए नहीं है, आपके पास 3 पेपर या 2 पेपर होके आए हैं जहाँ पे आप लोगों ने अपनी लीगल नॉलेज दिखा दी है। अब आपका इंग्लिश का पेपर है, आपको इंग्लिश पे फोकस करना है, आपको अपनी लॉ पे फोकस नहीं करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन के रिलेशन में, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट है और सेक्सुअल हैरेसमेंट है, आईपीसी के सेक्शन है, बीएनएस हो गया, सब सेक्शन है, वो तो ऑब्वियसली इट विल बी अ पार्ट ऑफ ऐसे पार्ट। वन थिंग इज दैट इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश पे फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि तुमने 3 शीट्स भरी और उसके अंदर से 2.5 तो तुमने लॉ ही लिख दी, वो तुम्हें फेच नहीं करेंगे, वो इट वुडंट फेच यू योर मार्क्स। ठीक है, सो दिस इज एन इंग्लिश पेपर, नॉट अ लीगल पेपर। अभी तक कोई डाउट है किसी को, एनीवन? Okay, I hope I was clear till this. पहले बिफोर स्टार्टिंग आई वुड जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू कि कौन से स्टेट्स में कौन से लाइक विच लैंग्वेज पेपर हैज कितने मार्क्स का एसे। सो ऑल ऑफ यू हेयर आर फ्रॉम डिफरेंट स्पेयर्स, आप लोग अलग अलग स्टेट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सो आई जस्ट, माय टीम हैड मेड दिस कंपाइलेशन जहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का डेटा कलेक्ट करा है जहाँ पे जितने मार्क्स का आता है। सो पहले अगर हम लोग एमपी की बात करें, हिंदी का भी है इंग्लिश का भी है, हिंदी के कल के सेशन में डिस्कशन होगी, पर एमपी की बात करें तो देयर आर 2 एसेज, वन इज अ सोशल टॉपिक एसे एंड वन इज अ लीगल टॉपिक। अगर आपको पता है कि आपका लीगल टॉपिक है फिर आप उसके अंदर लॉ ही लिखोगे, पर ऐसा नहीं है कि पूरी लॉ लिखोगे। ठीक है, लॉ लिखनी है पर ऐसा नहीं करना कि पूरी लॉ लिखनी है। उसके अंदर इंग्लिश भी इंक्लूड होंगी, इंग्लिश मतलब जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। और एक आएगा आपका सोशल टॉपिक पे, जैसे वुमेन पे आ गया, चाइल्ड लेबर पे आ गया, तो ये आएगा। उसके अंदर देखो दोनों में लॉ कहीं ना कहीं एक पार्ट तो बनेगा, पर ये लीगल टॉपिक आएगा तुम्हें। जैसे लीगल टॉपिक क्या आ सकता है आपके अकॉर्डिंग, बताओ कोई रीसेंट लीगल टॉपिक जो आजकल बहुत हॉट है और बहुत न्यूज में, इफ एनीवन कैन टेल मी। बोथ सोशल टॉपिक एंड लीगल टॉपिक। यूसी3, राइट। Apart from that, One nation, one election. one nation, one election, yes. सोशल टॉपिक बताओ।
climate change. Absolutely right. और कोई टॉपिक, सोशल टॉपिक बताओ। एनवायरमेंट से रिलेटेड। जैसे अभी वेस्ट बंगाल में, यू नो, द डॉक्टर वाज रेप्ड। Crime against war impacts is not, it is not a social topic. War impacts, just let me read. War impacts is not a social topic. That is like a global issue. It will not be covered under the under the social topic. Social topic हो गया जैसे वेस्ट बंगाल में the doctor was raped, so maybe on rape. And like Saloni said, gender neutral laws, yes, it is one of the social topics, but obviously it will have the tenets of both law and English. पर ये बेसिकली फोकस्ड ऑन लॉ आएगा, ये फोकस्ड ऑन सोसाइटी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में ये मार्किंग है। देन इफ वी सी दिल्ली का, दिल्ली का जो है, सो दिस इज ऑफ 50 मार्क्स, ओके, 30 and 20। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लो, आई गिव यू 2 minutes सो दैट यू हैव इट। चलो अब दिल्ली का देखते हैं। ऐसे आता है वहां पे 40 मार्क्स का। ठीक है, टोटल लैंग्वेज पेपर आता है 150 का, ऐसे आता है 40 मार्क्स का। अब ये सोशल भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, इसमें ऐसे बाइफिकेशन स्पेसिफिक नहीं दी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलें तो राजस्थान है। राजस्थान के अंदर 50 मार्क्स का आता है लैंग्वेज पेपर, और तीनों ही एसेज होते हैं। एक होता है 500 वर्ड्स का, एक होता है 400 और 400, सो दिस इज 20, 15 and 50 अगेन। it can be about the history of Rajasthan or some social, legal, sports का कुछ हो सकता है, जैसे डी कुकेश का भी चल रहा है, anything, okay। then उत्तर प्रदेश में, yeah, I'll send you the PDF, you'll get it। सो उत्तर प्रदेश में 100 मार्क्स का आता है, एंड 100 मार्क्स का लैंग्वेज एग्जाम आता है, जिसके अंदर 50 मार्क्स का आपका ऐसा आता है। सो बेसिक मैं आपको बता देती हूँ, जैसे यहाँ लिखा ना 50 मार्क्स 500 वर्ड्स, फॉर एवरी 10 मार्क्स यू हैव टू राइट 100 वर्ड्स, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग आते हैं। तो ये हम लोग बेसिक लेके चलते हैं कि हर 10 नंबर के लिए हम 100 वर्ड्स लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 50 नंबर का ऐसे आ रहा है तो हम लोग 500 वर्ड्स लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा बिहार। बिहार में क्या है, बिहार में आता नहीं। इन बिहार यू डोंट हैव ऐसे, बट इन हिंदी यू हैव ऐसे। ठीक है, एंड देन उत्तराखंड, उत्तराखंड यू डू गेट योर essay। No, Uttarakhand also doesn't have essay. So Bihar, there is no essay in English. Then Uttarakhand, there is no essay in English. Okay. Then Jharkhand, Jharkhand, there is an essay of 15 मार्क्स। तो कितने वर्ड्स हो गए 15 मार्क्स के लिए? 150 to 170 वर्ड्स अप्रोक्स। ठीक है, देन पंजाब और हरियाणा, पंजाब ऑल्सो सेम। वहां पे यू गेट एन essay ऑफ 100 मार्क्स। सो सबसे ज्यादा, मोस्ट वेटेज जहाँ पे ऑफ essay, कहाँ पे? पंजाब और हरियाणा में 100 नंबर का आता है, जहाँ पे तुम्हें 1000 से 1100 वर्ड्स। ठीक है, I hope I was clear on this. I have given, you will get this PDF in the group, don't worry about it। बट ये मैंने आज जस्ट गिवन अ ब्रीफ ओवरव्यू कि कितने, कौन से स्टेट्स में कितने मार्क्स का आता है। फॉर एवरी 10 मार्क्स यू हैव टू राइट 100 वर्ड्स एज अ जनरल रूल, बट यू कैन ऑल्सो एक्सीड इट, मतलब +20 कर सकते हो, उससे ज्यादा मत करना, ओवर राइटिंग हो जाएगी, मार्क्स कट जाएंगे नेगेटिव इंप्रेशन का। ठीक है जी, क्लियर टिल है? चलो अब हम लोग पहले चलते हैं हमारे बेसिक्स पे। हमारा पहला टॉपिक है बेसिक्स। ओके, मैंने आपको एक चीज तो बता ही दी कि ये हमारा इंग्लिश का पेपर है, लॉ का पेपर नहीं है, पहली चीज। तो इफेक्टिव ऐसे लिखने के लिए, सबसे ज्यादा फेच मार्क्स करने के लिए आपको आपके ऐसे में क्लैरिटी चाहिए।
आपको अपने ऐसे में एरर फ्री राइटिंग चाहिए, और आपको अपने ऐसे में कंसाइजनेस चाहिए। ओके, तो whenever you get a topic, for example, what topic we take? Give me a topic, anyone. चलो यूसीसी देखते हैं। ठीक है, यूसीसी हम देखते हैं। हम हमें लगता है आर्टिकल 44, पहली पहली चीज आती है आर्टिकल 44, फिर हमें लगता है गोवा, गोवा पहला स्टेट था इम्प्लीमेंट का, फिर हम बोलते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक है, फिर हम बोलते हैं कि पॉलिटिकल डिबेट्स का ये हॉट टॉपिक है। ठीक है, हम बोलते हैं कि रूलिंग पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये इंक्लूड करा था। हम लोगों को यही सब चीजें आती हैं। और क्या आता है आपके माइंड में व्हेन यू हियर अबाउट यूसीसी? टेल मी। You can unmute yourself and tell me, or you can type your message. Whenever I tell you कि आपको एकदम promptly आंसर करना है यूसीसी। if I tell you what you think in your mind। हाँ, एपेक्स कोड की जजमेंट। उसके अलावा tell me this is an interactive session. As much as you are learning from me, I will also learn from you। क्या आता है और दिमाग में? Good, Akshat, absolutely right। Aditya Law Commission, yes। CMPT, and what is your name? Clash of personal beliefs of all religion। ठीक है, so this is what you get। So this is the clarity of your thought, कि यार मेरे को ये पढ़ के ये समझ आ रहा है कि मैं क्या क्या लिख सकता हूँ इसके अंदर। पहली चीज तो यही है कि तुम्हें एक टॉपिक मिला। अब क्या होता है, ज्यादा स्टेट्स में ना यू गेट ऑप्शंस बिटवीन योर एसे दैट यू हैव टू पिक वन और टू। तो तुम पांच ऐसे पढ़ते हो। कभी भी ऐसा मत करो कि जैसे ये है, एक टॉपिक, दो टॉपिक, तीन, चार, पांच, ये पांच आपको टॉपिक्स आते हैं। हम क्या करते हैं, हम कहेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट में तो मेरे पास सारा कुछ है, मैं यही करूंगा। हम लोग ये भी वी टेंड टू इग्नोर दिस, वी टेंड टू इग्नोर दिस। व्हाट यू हैव टू इज व्हेनेवर यू हैव टू चूज अ टॉपिक फॉर योर मेंस, जब आपको अटेम्प्ट करना है, यू हैव टू यूज द एलिमिनेशन मेथड। You will never look at the list of the essays that have been provided to you and think कि ये तो मेरे को आता है, यही लिखूंगा। ऐसा कभी भी मत करना, बिकॉज देयर माइट बी अनदर टॉपिक जो आपको और बेटर आता हो। पर हम क्या करते हैं, एक चीज देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट, चलो ये तो मेरा बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर्ड है, मेरे को सब कुछ याद है, मुझे कोट्स भी आते हैं, मुझे एनेक्डोट भी आता है, मैं फिक्शनल स्टोरी भी बना सकता हूँ। आई कैन डू दिस। ठीक है, ये नहीं करना। आपको पूरे टॉपिक, सारे टॉपिक्स एक बार एनालाइज करने हैं, तभी आपको क्लैरिटी ऑफ द थॉट्स। ठीक है, क्लियर टू है? ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा एरर फ्री राइटिंग। इंग्लिश का पेपर करने के लिए सबसे पहले आपको आपकी वोकैबलरी स्ट्रांग चाहिए। उसके बाद आपके स्पेलिंग एरर्स नहीं होने चाहिए। आपको एक बात बताऊं, जब भी पेपर होता है, अगर आपके स्पेलिंग एरर्स है ना, अगर एक शीट है, आपका जो इवैल्यूएटर होगा ना, वो ऐसे मार्क करेगा, ऐसे गोले मारेगा, ये स्पेलिंग एरर, ये स्पेलिंग एरर, ये लैंग्वेज एरर, ये ग्रामेटिकल एरर। और वो देखेगा कि आपके पेज में छह सात गोले मार दिए, वो सीधा एक दो नंबर काट देगा। सम स्टेट्स में ऐसा भी होता है दैट फॉर वन मिस्टेक दे डिडक्ट 0.5 मार्क्स। पंजाब हरियाणा में ये होता है, लैंग्वेजेस के पेपर में तुम्हारे स्पेलिंग्स मिस्टेक के लिए 0.5 मार्क्स कटते हैं। तो प्लीज अपने वो कैप, अपने इस पे स्पेलिंग पे और अपने ग्रामर पे बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है कि हम तो कॉन्वेंट में पढ़े हैं, हमें सब आते हैं। प्लीज ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यू हैव टू, I will tell you how you can do this also, but these three things you have to be very careful when you're attempting your language paper। हिंदी में भी सेम है, कोई आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी सेम है। ठीक है, और और आपको अपने ऐसे को कंसाइज बनाना। कंसाइज कैसे बनाओगे?
एक पॉइंट यहाँ लिखा, फॉर एग्जाम्पल आपने ये इंट्रो लिखी अपने ऐसे की, वी हैव रिटन एक्स वाई जेड पॉइंट, देन यू राइटिंग अ बॉडी, बॉडी में फॉर एग्जाम्पल आप कॉजेज लिख रहे हो, आपने ये एक्स वाई जेड को यहाँ पे फिर से एक्स वाई जेड कर दिया, ये क्या हो गया, रेपिटेशन हो गई, रेपिटेशन से आपके क्या हो गए, मार्क्स कटेंगे, बिकॉज यू हैव टू प्रोवाइड न्यू कंटेंट ऑल द टाइम। अब क्या होता है, इंट्रोडक्शन में एक्स वाई जेड लिखा, आपको यही सेम बात लिखनी है बॉडी, आप लिखो, आई एम नॉट सेइंग मत लिखो, पर इसके जैसे कोई वर्ड है उसके सिनोनिम्स लिखो या उसको एक्टिव से पैसिव कर दो, ये करो, पर कभी भी सेम लाइन ऐसे सेम 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 मत करो। तो आपको कंसाइजनेस भी चाहिए, आपको कॉन्शियसनेस भी चाहिए, कॉन्शियसनेस एज इन ऑफ योर थॉट्स दैट व्हाट आई एम राइटिंग व्हाट आई हैव टू डू। ठीक है, क्लियर? ठीक है, आई होप कि आपको क्लैरिटी का समझ आया, आपको पता चला दैट वी हैव टू फोकस ऑन आवर वोकैब, on our grammar, on our spellings, and then you have to be very concise with your essays. You should not cross that word limit because then the evaluators tend to get irritated. उनको एक दिन में कितने पेपर चेक करने होते हैं, आप लोग 10 नंबर का आपका ऐसे आया फॉर एग्जाम्पल, आप उसमें 500 वर्ड लिख के आओगे, वो आपको जितने नंबर देने होंगे ना वो उतने भी नहीं देगा, आपको दो भी नंबर नहीं मिलेंगे, आपने जितना अच्छा लिखा हो। तो एक थोड़ा ये चीज का ध्यान रखना है कि हमें हमारे जो वर्ड लिमिट है उसके अंदर हमारे ऐसे लिखना है, ठीक है? So language proficiency and content quality are the most important aspects. So content quality, content को आपको गैदर करना पड़ेगा, आपको कंपाइलेशन बनानी पड़ेगी कंटेंट की, ठीक है? There is a freedom to put your constructive thoughts on a paper. Constructive इस पर प्लीज फोकस करना, कुछ भी ऐसा लिख के आना जो डिस्ट्रक्टिव हो, जो तुम्हारे रिगार्डिंग इवैल्यूएटर के मन में ये थॉट डाले कि यार ये क्या लिखा है इसने, क्यों लिखा है। So you have to be very positive with your outlook. Even if तुम्हें पता है वुमेन सिचुएशन ऑफ वुमेन इन इंडिया तुम्हें पता है कैसी है, सबको पता है, रेप्स हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, ऑनर किलिंग्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, हमें भी पता है, वो सबको पता है, वो इवैल्यूएटर को भी पता है, पर तुम लोग अपने ऐसे में पूरा यही डाल रहे हो जी उसका ये रेप हुआ, फिर उसकी ऑनर किलिंग हुई, ठीक है, फिर उसको उसका मर्डर हो गया, फिर उस वुमेन के साथ असॉल्ट हो गया। आप ये नहीं कर सकते हो, पूरा ऐसे आप नेगेटिव्स के साथ नहीं पढ़ सकते हो, आपको अपने इवैल्यूएटर से योर पेपर हैज टू, द इवैल्यूएटर डजंट नो यू, तो योर पेपर हैज टू स्पीक फॉर यू। उसको मतलब उनको ऐसे लगना चाहिए कितना बढ़िया इंसान है कि ये तो जज बनने के लायक है। तो आपके पेपर को और आपके कंटेंट को, आपकी लैंग्वेज को, आपके वोकैब को, आपके ग्रामर को आपके लिए बोलना पड़ेगा एग्जाम में, आप खुद नहीं बैठोगे इवैल्यूएटर के सामने, ये सब इंटरव्यूज में चलता है, मेन में नहीं चलता। ठीक है जी, and then you can easily score above 65% of the maximum marks by keeping few things in mind. A few things क्या है वो हम next पढ़ते हैं, ठीक है जी? बेसिक समझ आए, clarity, error free writing and conciseness, also consciousness. Okay, clear everyone? ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चले अब हम, गिव मी अ थम्स अप अगर ये हम लोग चलो सोर्सेज पे चलते हैं, ठीक है? एक मेरे को और चीज बतानी है बिफोर आई हेड फॉरवर्ड, जैसे मैंने बोला कि आपकी लैंग्वेज जो है वो एरर फ्री होनी चाहिए। प्लीज एक बात का ध्यान रखना, कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं कुछ, कई स्टेट्स में तो वो प्रिस्क्राइब्ड हैं सिलेबस में, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपने लिखना है ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन इन द सिस्टम इज नीडेड, फॉर एग्जाम्पल आप वे फॉरवर्ड में लिख रहे हो और आपने लिख दिया ऑल्टरकेशन इन द सिस्टम इज नीडेड, ठीक है? तुमने अपने सेंटेंस का मतलब ही बदल दिया, देख रहे हो? ऑल्टरेशन और ऑल्टरकेशन क्या मतलब होता है, ऑल्टरेशन का क्या मतलब होता है, ऑल्टरकेशन का क्या मतलब होता है, बताओ? ऑल्टरेशन इज चेंज एंड ऑल्टरकेशन इज कॉल। तुम क्या कह रहे हो, यहाँ पे बोल रहे हो कि हमें सिस्टम में चेंज चाहिए, हम अब यहाँ पे लिख रहे हैं हमें सिस्टम में लड़ाइयाँ चाहिए तब हमारी सेटिंग होगी जी। यू गेटिंग दिस? सो यू डोंट हैव टू डू दिस प्लीज, थोड़े ना अपने वर्ड्स ध्यान रखने हैं।
सारी चीजों का ध्यान रखना है बहुत। अब और कोई कंफ्यूजिंग वर्ड बताओ मुझे। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, क्या लिखना है? द स्टेट शुड एक्सेप्ट द स्टेक होल्डर्स रिकमेंडेशन, जैसे मैंने ये लिखना है अपने ऐसे में। ठीक है जी। और मैंने क्या लिख दिया? मैं लिख दिया एक्सेप्ट, मतलब चेंज, पूरा चेंज हो गया। एक्सेप्ट मतलब अप्रूव करना। एक्सेप्ट का क्या मतलब होता है? इग्नोर, इग्नोरेंस। हाँ, प्रोसिक्यूशन एंड प्रोस्टिट्यूशन। देखो, prosecution will handle the case and prostitution will handle the case. So this is a very big thing. You know, it changes your sentence and it changes the meaning of a paragraph in total. Remember this. ये मेरे को बहुत स्पेसिफिकली बताना था, कैसे मत करना प्लीज पे। बी केयरफुल अबाउट इट, ओके। चलो अब हम लोग सोर्सेज पे चलते हैं, बहुत हंसी मजाक हो गया। Let's move on to the sources on how you can compile an essay. चलो आप बताओ क्या सोर्सेज हो सकते हैं आपके पास। लेट्स मेक दिस अ लिटिल इंटरैक्टिव. I'd also get a 2 minutes break from speaking. Newspaper, magazine. Sapna, you were speaking something. Yes, Editorials, ma'am. books, right? Newspaper, You're not audible, magazines. Sapna. Okay, speak. Hello. Yeah. You are audible now. Yes, ma'am. Newspapers, magazines, and artificial intelligence. मतलब somehow we can take help from to make some points. Okay, ठीक है. Artificial intelligence is a boom. Chat GPT. I will tell you one thing, okay? अगर artificial intelligence की बात आई हो तो मुझे बताओ ये बून है कि बेन है? प्रोज ज्यादा है कि कौन ज्यादा है? You know what all वो is happening because of AI. नेगेटिव एंड पॉजिटिव, हाँ, बोथ कॉन्सिक्वेंस, मतलब have some positive impact and had some negative impact also. Never rely दोनों. for your content on AI. Never ever do that. Akshat, yes, you have a doubt. No, I was about to give my opinion as to the bone. Yeah. Please go ahead. Like with respect to law specifically, I believe it's kind of a curse. I believe because I have been using AI for some research work, and it generates false citations, false case laws, and false facts even in certain cases. So relying on AI, particularly for a law, is destructive for our overall preparation. That's true. That's why I'm saying that never rely on AI for your content. Any sort of content, be it legal, be it your languages. Never do that. But ma'am, some UPSC students recommend that or you can use AI for writing ऐसे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स मतलब वो वहां से दे देते हैं, क्योंकि वो रिसेंटली कनेक्ट होता है एआई से, एल्गोरिदम डाटा उसमें ऐसा डाला हुआ होता है जो कि हम नहीं मतलब सोच सकते, और वो उसमें आ जाता है। मतलब मुझे ऐसा लगा था सोशल ऐसे से, मतलब लॉ के प्रोस्पेक्टिव से नहीं, मैं बस ऐसे के प्रोस्पेक्टिव से। अगर आप एआई से कोई भी कंटेंट उठा रहे हो ना, एक बार उसकी वेरिफिकेशन जरूर करो। यस मैम। बस ये बोल रही हूँ मैं। You need to be cautious, that's right. और जी मैम। और अच्छा, आप में से कौन न्यूज़पेपर्स डेली पढ़ता है? जी। Now everyone else also, there are around 16 people. Tell me, पढ़ते हो न्यूज़पेपर रोज? पढ़ना चाहिए। कौन सी न्यूज़पेपर रेफर करते हो यूजुअली? द हिंदू और जनसत्ता हिंदी में, द हिंदू इंग्लिश। इंडियन एक्सप्रेस, ओके।
हिंदू. ओके. आई प्रिज्यूम दैट यहाँ पे सब लोग जुडिशरी की ही तैयारी कर रहे हैं. आई होप नो वन इज लाइक जो यूपीएससी में लॉ लेके बैठे हैं और इधर आ रहे हैं या लैंग्वेजेस के लिए इधर आ रहे हैं. आई प्रिज्यूम कि यहाँ पे सब जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं. तो एक चीज जो मुझे बहुत हेल्प, मतलब आई एम लाइक यू ओनली. आई एम ऑल्सो still a learner. I'm also in the same boat as you people are. So what I think is that मैं पिछले 1.5 साल से रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ और मैं अपने करंट्स के साथ बहुत अपडेटेड हूँ. मतलब आई डू दैट डेली, 1 hour मिनिमम, इवन माई लीगल. सो हिंदू इज अ गुड न्यूज़पेपर, नॉट सेइंग एनीथिंग बैड, बट जुडिशरी वालों के लिए इंडियन एक्सप्रेस, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत बेटर है, हिंदू से बहुत बहुत अच्छी है. Because what you do is there is an explanation section in that newspaper जहाँ पे 99% of the times you get your legal content. कुछ ना कुछ लीगल आता ही आता है वहाँ पे. Obviously apart from things जैसे कुछ भी चल रहा और तब जैसे वॉर वगैरह की न्यूज आती है, एक्सप्लेन सेक्शन है वहाँ का, तो वो आता है. बट कुछ भी सुप्रीम कोर्ट का हो, कुछ भी हाई कोर्ट का हो, कुछ भी हो, there is always a legal editorial in it and there is a detailed explanation of that topic. So what I do is I refer to the to the Indian Express in detail. मैं उसका न्यूज भी पढ़ती हूँ, एडिटोरियल्स भी पढ़ती हूँ, पर मैं क्या करती हूँ कि मैं हिंदू की न्यूज नहीं पढ़ती हूँ, उसके एडिटोरियल्स पढ़ती हूँ. सो दिस इज वन थिंग दैट आई डू. ऑब्वियसली ये बहुत ही पर्सनल चीज है कि आपको क्या कंफर्टेबल लगता है, क्या पढ़ना, कौन सी लैंग्वेज. आई फील दैट हिंदू इज मोर फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स एंड इंडियन एक्सप्रेस इज मोर फॉर जुडिशियल एस्पिरेंट्स. आई फील दैट. नाउ ऑब्वियसली वो आपके ओपिनियंस है, आई एम जस्ट रिकमेंड. ठीक है जी. ठीक. चलो अब हम लोग आगे करते हैं, सोर्सेस करते हैं. तो सोर्सेज में मैंने यही लिखा है दैट यू कैन रेफर टू द न्यूज़पेपर, then you can refer to the books, and then you can refer to the online sources. One word of caution that online sources को वेरीफाई कर लिया करो, क्योंकि सही होता है नहीं होता है. आज हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन का ऐसे फ्रेम करेंगे अभी क्लास में. तो न्यूज़पेपर मैंने यहाँ पे भी लिखा है दैट फॉर जुडिशियल एस्पिरेंट्स इंडियन एक्सप्रेस इज यूजुअली रिकमेंडेड, क्योंकि कहीं पे भी हम लोगों ने भी कोचिंग ली है, कुछ करा है, तो हमें भी हर जगह यही बोला गया है. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ट्राइड एंड टेस्टेड, दैट इंडियन एक्सप्रेस इज गुड फॉर जुडिशियल एस्पिरेंट्स. तो क्या हुआ कि अभी ये 18th की वो है क्लिपिंग्स. देयर इज ऑल्सो दिस टेलीग्राम ग्रुप. आई एम नॉट डूइंग लाइक, मैं वो नहीं कर रही हूँ किसी का प्रमोशन या वट एवर, डोंट थिंक दैट. ये एक न्यूज़पेपर ग्रुप है जहाँ पे हर तरह की न्यूज़पेपर्स आती है, हिंदी और इंग्लिश, एवरी पब्लिकेशन, एंड एट द एंड ऑफ द डे दे सेंड अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल द आर्टिकल्स, इंग्लिश का अलग और हिंदी का अलग. अगर तुम बोलते हो मैं तुम्हें दिखा भी देती हूँ उस चैनल को, तुम लोग ज्वाइन कर लेना. यू वांट मी टू शो इट टू यू? यस मैम. ये है चैनल न्यूज टॉप. क्यूआर अगर मेरे को मिलता है तो तुम लोग, don't know how do I. पता नहीं तुम्हें लिंक दिख रहा है, मेरे को कुछ समझ, मतलब आई एम नॉट दैट टेक ओके नहीं हूँ मैं. ये वाला लिंक दिख रहा है आपको? ये कॉपी कैसे होगा या व्हाट डू आई डू? जस्ट अ सेकंड, आई विल पुट इट इन द चैट.
कॉपी कर सकते हो यहाँ चैट से, मतलब हाँ ये आपको आ जाएगा, लिंक ही आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये देखो, ये देख रहे हो तुम, ये सारे एडिटोरियल्स आ गए आज के, हर न्यूज़पेपर के, नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ। And this is, I think, is a very good way to go through your editorials. ये मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट का आ गया, and then this everything and every sort of newspaper की clipping you get in this editorial compilation. मतलब ग्लोबल हो गया, नेशनल इशू हो गया, सोशल इशू हो गया, लीगल इशू हो गया। ये देखो सुप्रीम कोर्ट ये सारा लीगल है। ठीक है, मतलब ये बहुत अच्छा सोर्स लगता है मुझे। मैं बहुत टाइम से इस चैनल, मतलब आई हैव बीन एडेड टू दिस चैनल सिंस अ लॉन्ग टाइम, एंड आई डू दिस ओनली। आई डोंट रीड वो वाली न्यूज़पेपर, क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी नहीं पढ़ती हूँ मैं, सॉफ्ट कॉपी ही पढ़ती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट इज न्यूज़पेपर। तो क्या हुआ कि मेरे को पता था कि मैंने वन नेशन वन इलेक्शन करना है, तो ये 18th, एक एक दिन की न्यूज़पेपर है, 18 तारीख की, और देखो तीन अलग अलग न्यूज़पेपर्स में ये आया हुआ है। ये न्यू इंडियन एक्सप्रेस है, ये हिंदुस्तान टाइम्स है, और ये इंडियन एक्सप्रेस, और ये मैंने कंपाइलेशन से ही उठाया है, जो डेली कंपाइलेशन आती है एडिटोरियल्स। ठीक है, सेकंड आ गया बुक्स। अब रिकमेंडेड बुक्स हैं दो, एक अरिहंत की है, एक स्पेक्ट्रम की है, एसे राइटिंग की बुक। अगर आपको लेनी है तो ले लो, नहीं लेनी है तो ऑनलाइन सोर्सेज भी इनफ है और न्यूज़पेपर भी इनफ है। मतलब आई डोंट रेफर टू एनी बुक पर्सनली, बट आई डू रेफर टू न्यूज़पेपर डेली, एंड देन द ऑनलाइन सोर्सेज व्हिच आई ऑब्वियसली वेरीफाई। So please verify anything that's in the newspaper that's authenticated, but क्योंकि वो वेरिफिकेशन करके पब्लिश करते हैं। पर अगर आप ऑनलाइन सोर्सेज कहीं से भी उठा रहे हो, दृष्टि आईएएस से, विजन आईएएस से, कहीं से भी कुछ भी उठा रहे हो, एक बार वेरीफाई करो। ठीक है जी, क्लियर, सोर्सेज समझ आए। ये एक हैबिट इनकलकेट करो अपने अंदर, जैसे एआई का कोई ऐसे है, आपने अपनी एक नोटबुक लगानी है, वो ऐसे नोटबुक ही हो। ठीक है, उसके अंदर आप लोग पहला पेज या दूसरा पेज छोड़ दो कि मेन टॉपिक्स की लिस्ट ये लिखने हैं। फॉर एग्जांपल आपने पहले उठा लिया एआई, आप वहां पे ना अपने पॉइंटर्स लिखो, जैसे आप एक शीट पे इंट्रो लिख दो, नेक्स्ट पे बॉडी लिख दो, तो ये पूरी शीट आपके पास पड़ी है। आपको जहां जैसे जो जो पॉइंट मिल रहा है आप लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, आपके पास एक कंपाइलेशन हो गया, उसका आप एक बेस्ट ऐसे फ्रेम कर लो। ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि आपके पास डिफरेंट सोर्सेज की कंपाइलेशन है, आपके पास इनफ स्पेस है वो सब लिखने की, एंड देन यू फाइनली मेक योर ओन एस। ठीक है जी, क्लियर एवरीवन, सोर्सेज समझ आए, बेसिक समझ आए, पता चल गया न्यूज़पेपर को कैसे करना है रीड, कहाँ से क्या करना है। ठीक है, चलो वेरी गुड, वेरी हैप्पी दैट यू गेटिंग इट। अब हम लोग को ने हमारा बेसिक्स कर लिया, हमारे सोर्सेज कर लिया, और अब हमारा वी गोइंग टू स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर। सो टेल मी अ ब्रीफ ओवरव्यू कि आपको क्या लगता है कि स्ट्रक्चर में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या होना चाहिए एक प्रॉपर एसे में। से 50 मार्क्स का एसे है, जस्ट 50 मार्क्स का हमारा एसे है। हमें कितने वर्ड्स लिखने हैं, अप्रोक्सीमेटली 500 टू 520, नॉट मोर देन दैट। अब हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या पार्ट्स होने चाहिए, बताओ। या लक्ष्यता, राइट, इंट्रो, बॉडी, सजेशंस एंड कंक्लूजन। हाँ जी, और इंक्लूड सम कोट्स, एब्सोल्युटली। और बताओ, करो अनम्यूट अपने आप को, या करो चैट, उसमें चैट में टेक्स्ट करो मुझे। बेसिक क्या होता है, हमें पता है कि हम इंट्रो लिखेंगे, हम कंक्लूजन लिखेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, बॉडी डालेंगे। बॉडी की हम लोग सब कैटेगराइजेशन करते हैं। बेसिक तो यही तीन चीजें होती हैं इससे में। चलो अब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं।
तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो कानूनशाला, या फिर अगर आपको और कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, मेरे को आई होप दैट आई could add a little knowledge to your own already, you have a room of knowledge already, but I hope that I was a little helpful to you in all this and you got to know कि कैसे attempt करना है, क्या क्या include करना है, क्या क्या करना है नहीं करना। Thank you very much.